Hello students, welcome to online education, subject mathematics, standard 7, chapter are as follows. First we will discuss ratio and proportion, then unitary method, percentage, simple interest. See, these topics are not new for you, isn't it? ये सब आपने previous standard में पढ़ा ही है. So let's start with first ratio and proportion. What is ratio? Ratio किसको बोलते हैं? Means part of sharing, that is called ratio. अगर एक एप्पल के 5 पीसेस किए, कितने किए टोटल? 5 पीसेस. And you and your brother shared. You got 3 pieces and your brother got 2 pieces. Then what is the ratio of sharing? 3:2. You got 3 parts and your brother got 2 parts. Got it? So this part of sharing is called ratio. यानी कितना शेयर किया. Comparison means to know how many times one quantity is of other. अभी कंपेयर क्यों करते हैं हम? जानने के लिए ना कि एक क्वांटिटी दूसरे से कम है या ज़्यादा है या उसके इक्वल है. कंपैरिजन गिव्स दिस रिजल्ट. सो कंपैरिजन मीन्स हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटीज ऑफ अदर. एक क्वांटिटी दूसरे से कितने टाइम ज़्यादा है. और टू नो व्हाट पार्ट ऑफ वन क्वांटिटीज ऑफ अदर, या फिर एक दूसरे का कितना हिस्सा, कितना पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन, है ना. और वो हमको जो आंसर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो. इट इज़ कॉल्ड द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन द सेम यूनिट्स. तो ये जो कंपैरिजन के बाद जो रेशियो हमारे पास आता है ना, दैट इज कॉल्ड got it. So this 3 and 2 is the ratio of sharing 5. Got it? So it is the ratio of quantities of the same kind. Same kind मतलब अगर आप फ्रूट्स कंपेयर कर रहे हो तो फ्रूट्स ही होने चाहिए. अभी फ्रूट्स के साथ वेजिटेबल्स को कंपेयर नहीं करना है. एक स्टूडेंट की हाइट के साथ उसके मार्क्स को कंपेयर नहीं करना है. क्लियर? वेन एवर वी आर कंपेयरिंग हाइट ना, तो वी हैव टू टेक द हाइट ऑफ all the students. Clear? So the data sum must be same and in the same units. अभी आपके पास 5 रुपीज़ है, दूसरे के पास 50 पैसा है, तो कंपेयर कैसे करोगी किसके पास ज़्यादा है या किसके पास कम है? तो यूनिट मस्ट बी सेम. वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड आर कंपेयर्ड यूजिंग देयर रेशियो. तो जो बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती है उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं? रेशियो से. द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स A and B where B is not equal to 0. ठीक है. अभी क्योंकि 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो 0 मीन्स नथिंग. अभी A is to 0 मीन्स व्हाट? A is definitely greater than 0. So no need of comparing. कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर. क्लियर? So here B should not be equal to 0 and the ratio of A and B is A upon B. What is A upon B? And it is written as A dot B. Clear? So these 2 dots denotes for ratio. A ratio is simplest form is called the ratio in the lowest terms. A ratio is always written in terms of a lowest term. And 16 are not in simplest form, है ना. 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. So the ratio will be 3:4. So a ratio is always written in simplest form. Got it? To compare 2 quantities or to find ratio, the units must be same. This is the main thing which we have to keep in mind. See, whenever we are comparing any quantities और रेशियोज, देयर यूनिट्स मस्ट बी सेम. बिकॉज रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, जिसको कंपेयर करें ना उसकी यूनिट सेम होती है. रेशियो इज नेवर रिटन विथ यूनिट्स. ओके, इट डजेंट हैव यूनिट. गॉट इट?
So if two fractions are equal, their ratios are equivalent. अगर अभी दो फ्रैक्शन इक्वल है, सपोज आई रोट हियर 12 and 16, then I wrote 24 and 36, no 32, okay, let me write here 32. Now let's find the ratio of these two fractions. Again 3 4 ja 4 3 ja 12 and 4 4 ja 16. Now 12 2 ja 24 and let's write 6. 12 3 ja 36. Clear? Are they both same? No, the ratios are not same. तो जब अगर मैंने यहाँ पर सपोज 12/24 and 6, now we can say that these two fractions are equal or equivalent because their ratios are same. वो दोनों बोथ कौन से रेशियो में 1:2, यानी कि जब मैं लिखती हूँ 1:2 मीन्स this quantity is twice of this, or in other words we can say that this one is half of this, है ना. इसको लिखेंगे कैसे 1/2. So ratio is always represented in lowest term, and when two ratios are equal they are called in proportion. और जो two equivalent fractions होते हैं ना उनके रेशियो भी सेम होते हैं. Now what about the units with, what about the quantities with the different units? So different ratios can also be compared by writing them as like fractions. तो जो different ratios होते हैं ना उसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं. कैसे? उनको like fraction में कन्वर्ट करके. ठीक है, अभी कन्वर्ट कैसे करते हैं? डेफिनेटली अगर टू रेशियो से 2:3 एंड 3:4, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 2/3 एंड 3/4. क्लियर? 2/3 एंड 3/4. नाउ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 4? 12. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले एलसीएम को 12 कर देंगे. तो यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 3. नाउ 8/12 एंड 9/12. गॉट इट? 8/12 and 9/12. Now we can easily compare or not? Okay, so different ratios can be compared by writing them as like fractions. तो हम उसको like fraction में convert करके कर सकते हैं. That can be expressed three ways. That is, see here, 6 stars are there total. 2 is of blue color and 4 are of red color. So what is the ratio? 2/4 or 1:2, है ना. So we can say that the ratios that have the same value, यहाँ पर देखो 1:2, 2:4. Clear? So 1/2 and 2/4 will be written as 1/2. So the both ratios are same. So we can say that these are in the proportion or they are equivalent ratios. Clear? Now here I am having an example, 5 kilometer and 400 meter. So we have to compare 5 kilometer and 400 meter. How it is possible? Because one is in kilometer and another one is meter. So first let's make the unit same. So here the units of distance are different. So either we will convert this 5 kilometer to meter or this 400 meter to kilometer. The both ways you can do. दोनों आप कर सकते हो, but which is the easiest? हमेशा यूनिट कन्वर्शन में आपको लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है कि ग्रेटर टू स्मॉलर जाना ना वो इजी होता है. बिकॉज फॉर कन्वर्टिंग अ बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन. And but whenever we have to convert a smaller unit into bigger unit, we have to divide, and sometimes we are getting decimal numbers.
Okay, so it's better to convert always bigger to smaller. So here let's convert kilometer to meter, because meter is the smaller unit. So 5 kilometer equals to how many meters? 5000 meters, because 1 kilometer equals to 1000 meter. Got it? Now let's divide. So getting ratio, we have to divide the quantities. 0 0. Okay, then 2 2s are 4, 2 25s are 50. So the ratio is 25:2. Got it? Easy है ना फाइंड करना. Then percentage. What is percentage? Percentage means what? Percent. Per means what? हर एक. And cent means what? 100. Per 100 पे कितनी वैल्यू है? That is called percentage. Clear? So percentage are numerators of fractions having denominators as 100. यानी कि percentage किस में कन्वर्ट करेंगे? ऐसा फ्रैक्शन जिस डिनोमिनेटर 100 हो, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? परसेंटेज में. सो 25/100 equals to 25%, because the denominator is 100, and in a percentage a denominator of a fraction is always 100, or in percentage we have to convert the denominator as 100. Percentage are used in comparing results. अभी परसेंटेज को भी कंपैरिजन में यूज़ किया गया था. सपोज आपकी मार्क्स कोई कंसिडर करे क्लास में, रिजल्ट कैसे आपका आउट होता है? हु गॉट द मोर परसेंटेज, है ना? जो फर्स्ट रैंक वाले हैं 90% प्लस, सम आर 80% प्लस, सम आर 70% प्लस. गॉट इट? तो हम कंपेयर कैसे करते हैं? जो 90% वाले हैं वो सब A1 ग्रेड वाले हैं, 80% वाले A2 ग्रेड वाले हैं, देन 70% वाले B2 वाले हैं. गॉट इट? सो परसेंटेज आर ऑल्सो यूज फॉर कंपेयरिंग रिजल्ट. परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल this and means 100th. This is the 100th part of the whole value. Got it? Fractions can be converted into percentage by multiplying 100. अभी किसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो we have to multiply by 100. Suppose a fraction is there 12/20. अभी परसेंटेज की कंडीशन क्या है? The denominator must be 100. There are two methods. देखो, अगर यहाँ पर जो नंबर है सपोज 20 है, तो क्या 120 का मल्टीपल है? ऑफ कोर्स है, इंटू 5. तो 12 5 60/100, दैट इज 60%. गॉट इट? और नहीं तो क्या करना है? 12 × 20 × 100/100. क्लियर? समझ में आ रहा है? सो दिस 12/20 यू कैन सी व्हेनेवर वी आर डूइंग दिस मेथड ना, तो इस 100 को हमको तो ये 0 0 कट हो गया. 2 6 जा 12, 6 10 जा 60. नाउ 60/100, सो वी कैन राइट इट एज 60%. गॉट इट? समझ में आया? तो जो दोनों मेथड मैंने बताए आप कोई भी कर सकते हो. सो द परसेंटेज रिलेटेड टू प्रॉपर फ्रैक्शंस आर लेस देन 100, वेयरएज परसेंटेज रिलेटेड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मोर देन 100. तो जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, सपोज 2/3 और 2/5, तो इसका जो परसेंटेज आएगा दैट विल बी लेस देन 100, है ना? और इम्प्रॉपर का क्या आएगा? मोर देन 100. गॉट इट? सो वी कैन कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज एंड परसेंटेज इनटू डेसिमल्स, है ना? अभी डेसिमल्स को भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो, सपोज 0.45 है, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा 45/100. इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 1 के साथ कितने ज़ीरो लगाएंगे? 2 zeros. सो इट विल बी 45%.
गॉट इट। अभी देखो एक और करते हैं, 8.1, सपोज देयर इज अ नंबर 8.1, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 8.1 इनटू परसेंटेज। तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली 100/100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, सो इट बिकम्स 810%। समझ में आया। अभी देखो 8.1 इंटू ये 100/100 मीन्स क्या हुआ, 100%। हमको पता है जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है तो उसको न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज में। तो अगर 60/100 60% है तो 100/100 100% होगा कि नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। तो वी कैन राइट हियर 8.1 इंटू 100% इक्वल्स टू 8/10। अभी मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, इसको 2 डिजिट इधर ले जाते हैं, तो डेसिमल के बाद 1 ही प्लेस है, सो 1 मोर जीरो वी हैव टू ऐड। अभी क्योंकि 8.1 इसका होल पार्ट 8 है तो इट इज़ अ आया समझ में। और अभी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है वो तो आता ही है। सपोज 65% भी है तो 65/100 तो 0.65, ईजी है ना। अभी हम चाहें तो इस 65 को वापस फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 65 इंटू 1/100। अभी इसको कट कर दो तो हम क्या लिखेंगे, 65/100, ठीक है, और 13/20, तो हो गया ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट। क्लियर। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल्स। गॉट इट। सो नाउ लेट्स डू द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अभी हम करेंगे 8.1 विच इज बेस्ड ऑन द सम्स ऑफ रेशियोज। So let's start with question number 1. Find the ratio of ₹5 to 50 paise, then 15 kg to 210 gram, then 9 meter to 27 centimeter, then 30 days to 36 hours. Got it? इन द ऑल क्वेश्चंस यूनिट्स आर डिफरेंट, सब में क्या है, यूनिट डिफरेंट है, तो वी हैव टू मेक द सेम। अभी मैंने क्या बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि हमें जब भी कन्वर्शन करना हो तो इट्स बेटर टू गो बिगर टू स्मॉलर। तो ₹5 into 100, let's convert ₹5 into paise, that is 500. See, your steps would be like this. Okay, now the units are same, that 500 paise and 50 paise, so 500/50, 0 will be cancelled, so 10 is to 1. So the ratio of ₹5 to 50 paise is 10 is to 1. Got it? Then B, 15 kg to 210 gram. See, again let's convert this 15 kg to gram, that is 15,000, है ना, 15 into 1000. Now let's divide, 0 will be cut, 3 5s are 15, 0 3 7s are 21. So for converting a fraction into ratio we have to divide by its highest common factor. हमें क्या करना होता है, इसके highest common factor से करना होता है। Clear? So the ratio is 500 is to 7. Then C, 9 meter to 27 centimeter.
अभी 9 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 9 इंटू 100 बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 900. नाउ लेट्स फाइंड द रेशियो. Is to 3. So what is the ratio of 9 meter to 27 centimeter? That is 100 is to 3. "30 days to 36 hours. 30 days to 36 hours. So let's convert days to hours. ठीक है, because days is a bigger unit and hours is a smaller unit, तो हम bigger to smaller ही जाएंगे. So 1 day equals to 24 hours. So 30 days equals to 30 into 24. That is 720 hours. Clear? So 720 divided by 36. 36 2 ja. So 20 is to 1. Got it? Then question number 2. In question number 2, in a computer lab there are 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students? See, before doing this sum you must know the unitary method. Unitary method अभी 5th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है कि जब बहुत सारी क्वांटिटीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमें क्या करना है, पहले 1 की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स कितनी है? 50 रुपीज़. तो अभी एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 50/10, दैट इज़ ₹5. गॉट इट? तो सिमिलरली इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स. अभी हर 6 स्टूडेंट के लिए 2 मेथड है. ठीक है? सो फॉर 6 स्टूडेंट्स 3 कंप्यूटर आर देयर. फॉर 1 स्टूडेंट 3/6. क्लियर? रेशियो वाले मेथड से. फिर हम क्या करेंगे इसको, अभी क्या फाइंड करना है कि 12 स्टूडेंट्स के लिए 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए. सो 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 24. 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 स्टूडेंट्स. क्लियर? ये एक तरीका हुआ. अभी हम क्या करेंगे, इसको x लेके भी कर सकते हैं. सो लेट द x कंप्यूटर्स और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स x, यानी कि 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने चाहिए? x कंप्यूटर चाहिए. तो अभी रेशियो क्या आएगा? 3:x. 3:x and 6:24. Clear? स्टूडेंट टू स्टूडेंट एंड कंप्यूटर टू कंप्यूटर. 6 स्टूडेंट के साथ 24 स्टूडेंट्स एंड 3 कंप्यूटर के साथ x कंप्यूटर्स. क्लियर? सो 3/x इक्वल्स टू 6/24. तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है? तो इसके लिए क्या होगा, x इंटू 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 24 और x इक्वल्स टू 3 इंटू 24/6. 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 कंप्यूटर्स. समझ में आया? अभी हम यहाँ करते हैं. यूजिंग यूनिट 3/6 computers. Clear? Then 24 students will require 3/6 into 24, that is 12 computers. ठीक है? ये एक मेथड हुआ. और उसके पहले x वाला है वो भी आप कर सकते हो. वही रेशियो वाला मेथड था, ये यूनिटरी मेथड है. देन क्वेश्चन नंबर 3. पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 lakhs and population of UP 1660 lakhs. Clear? Now area of Rajasthan 3 lakh kilometer square or square kilometer, और area of UP that is 2 lakh square kilometer.
Clear? Now we have to find how many people are there per kilometer square in both these states and which state is less populated. ठीक है, अभी देखो 3 लाख में 570 lakhs पीपल है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने होंगे? तो ऑब्वियसली 570 डिवाइडेड बाय 3. क्लियर? चलो सॉल्यूशन करते हैं. Population of Rajasthan, that is given 570 lakhs. Then population of UP, that is 1660 lakhs. Now area of Rajasthan 3 lakh kilometer square and area of UP 2 lakh kilometer square. Clear? This is given. Now we have to find the population per square meter. Number of people per square meter of Rajasthan, that is 570 lakhs divided by 3, क्योंकि 3 लाख 90 lakhs पर किलोमीटर, यानी कि पर किलो स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं? 190 पीपल रहते हैं. देन नंबर ऑफ पीपल इन यूपी, दैट इज 1660 लैक्स. अभी एरिया ऑफ यूपी कितना है? 2. तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे. 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 0, 830. क्लियर? पर किलोमीटर स्क्वायर. गॉट इट? तो अभी किसकी पॉपुलेशन कम है? 190 इज लेस देन 830. मीन्स राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड स्टेट, जो कि हमारा सेकेंड का आंसर है. सो हियर राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड स्टेट बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ यूपी पर स्क्वायर किलोमीटर इज 830 persons and the population of Rajasthan per square kilometer is 190 persons. Clear? So Rajasthan is the less populated state. So here we have completed the sums of exercise 8.1. In the next session we will do the sums of exercise 8.2, which are based on percentage. So let's meet in the next session. Thank you.